ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Hello everyone. Surgeries, especially robotic surgeries. Then I had a thought in my mind, why can't it be done in this region? ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿಂದ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ that he is working under a very renowned Dr. Ashish Arbhat sir, robotic surgeon. Then he told me that we can get a tie-up with your hospital and serve people of this region. So without giving second thought, I called sir. Then we made a tie-up so that we can serve people of this region. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರೋಸ್ಗದು ಹೋಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಊಟದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇರೋದು ಖರ್ಚನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we are very much happy to have Dr. Ashish Arbhat sir with us today. He is a very renowned, internationally acclaimed robotic knee surgeon who has done nearly 11,000 plus surgeries and 5,000 orthoscopic surgeries. I welcome Dr. Ashish Arbhat sir to our place and I request him to serve our people in a big manner. I've come to my fellow Ram's place here and nevertheless we will serve as much as possible to the city of Gulbarga. As Dr. Renuprasad said, people are going far distances for these kind of surgeries, but we'll make it sure that everything stays here, stays well, because our patients are not able to travel much, and if they get good services at their own place. So I request Dr. Ram to introduce our robo and then we'll launch. There's a small audio visual. They should understand what we are doing. So I guess we'll all go on the dais and enjoy some audio visuals that we have made personally, and then we'll launch the HoloLens robo. Over to you. खूब निभा रहा है। टेक्नोलॉजी अभी केवल डायग्नोस्टिक में ही नहीं, सर्जरी में भी आ चुकी है। ये सिलसिला रोबोटिक्स तक आ चुका है। रोबोटिक का सिलसिला डाविंची रोबो एब्डोमिनल सर्जरी के लिए पहले विकसित किया गया। डेंटिस्ट आजकल 3D रोबोटिक प्लानिंग से डेंटल इम्प्लांट्स बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी आ गई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हम जानते हैं ये बहुत पुरानी समस्या है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी मॉडर्न इम्प्लांट्स आ गए हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे रोबोटिक्स। हम भी रोबोटिक्स में 2013 से हैं। फर्स्ट 1D रोबोटिक हमने 2014 में शुरू किया। 2D रोबोटिक्स हमने 2016 में शुरू किया। 2020 से हम अभी 3D रोबोटिक्स प्लानिंग शुरू करते हैं। 5,000 से ज्यादा सर्जरीज इससे कर चुके हैं। जो 4 कंपनीज अभी रोबोट्स और बना रही हैं जो अवेलेबल है इंडिया में, वो भी यही काम कर रही है, लेकिन हमें अब अपग्रेडिंग जरूरी समझा। हमें देखना है उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। ये पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट नहीं देते, एक्सुबरेंट कॉस्टली है, इनमें कोई सर्जन कंट्रोल नहीं है, कोई टेक्नीशियन कंट्रोल करता है। एक सिंगल डिजाइन कॉर्पोरेट कंपनी इम्प्लांट जो शायद कंपनी को सूट हो मगर पेशेंट को सूट नहीं हो, उसे फोर्स किया जाता है डालने के लिए। ये केवल 70% स्पेसिफिक होता है। हम सब जानते हैं कि सिंगल डिजाइन इम्प्लांट इस तरह डिजाइन होता है कि वो एवरेज 10 में से 3 पेशेंट को ही सूट होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस रोबोटिक्स के लिए ठीक नहीं। तो हमें ऐसा एक रोबो चाहिए जो पेशेंट
पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स दे, कंप्लीट सर्जन के कंट्रोल में हो और मल्टीपल चॉइसेस जो पेशेंट को 98% फिट करे. So now we are introducing the robo with all these features. This is the future. Revolution. This is the future. Revolution. से हम 3D रोबोटिक्स रोबो 3Ds यूज कर रहे हैं और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन बखूबी 5000 पेशेंट से ज्यादा में डाल चुके हैं और उसका हम रिजल्ट देख चुके हैं और जिसका डिस्प्ले पूरी प्लानिंग अब HoloLens 2 जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में अब मिल रही है। इसके बेनिफिट्स, इसका प्लानिंग हम खुद करते हैं, ना का कोई टेक्नीशियन। हम पेशेंट देख चुके होते हैं, पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट की लाइफस्टाइल हमें पता होती है और 13 डिफरेंट इम्प्लांट कंपनी से हम ये चूज कर पाते हैं कि पेशेंट को कौन सा इम्प्लांट 98.6% फिट बैठेगा, वो भी 3 डायमेंशन में। दिस इज द ओनली सिस्टम जिसमें सर्जन खुद या 4 ऑप्शन ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं। ये एक ही सिस्टम है जिसमें हम ओटी के अंदर सर्जरी के दौरान प्लान सिर्फ वॉइस ओवर से चेंज कर सकते हैं। इट फॉलोज योर वॉइस कमांड्स। ओटी में कोई फुटप्रिंट नहीं होता, कोई बड़ी मशीन हैप्टिक आर्म्स की जरूरत नहीं है। एंड एज वी नो द HoloLens 2 इंटरैक्ट्स विद द ह्यूमन ब्रेन, विद द ह्यूमन वॉइस। ये उस सर्जन के साथ इंटरैक्ट कर रही है जिसने सालों अपने हाथ, अपने ब्रेन, अपने रिफ्लेक्सेस को ट्रेन किया है, उसे क्वांटिफाई करता है, उसे एक सुपर पावर देता है। सो ये कंप्लीट ह्यूमन डिपेंडेंट रोबो है, वॉइस कंट्रोल्ड रोबो है एंड पेशेंट स्पेसिफिक है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी कैन गेट एज ऑफ नाउ। और ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो इसका अपग्रेडेशन विल हैव नो हार्डवेयर कॉस्ट। एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर वी नीड वोकल फॉर लोकल, इंट्रोड्यूसिंग द HoloLens 2 with Robo 3D software for the betterment of Indian patients with their requirement. In India, after Pune, we are launching the Microsoft
HoloLens Robotics. Open ka. To be on stage and open this small but very powerful machine. It can rule the world. HoloLens 2 with the Robo 3Viz software. All for Bilwa Hospital and the future of Gulbarga's orthopedics. Thank you. क्या हो रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट फेल क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्प्लांट टूटा आपने। क्या हो रहा है, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक अमेरिकन कंपनी कोई एक इम्प्लांट बना देती है जो सब में डाला जाता है। एग्जाम्पल, अपने पास 4 गाड़ियां हैं, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरे पास मर्सिडीज है, BMW है, महिंद्रा है और टाटा है। कोई गांव खड़े का आदमी आता है, रिच है, में सूट होगी, मुझे उसे महिंद्रा XUV 700 देनी चाहिए। रोबोटिक्स में या ऑर्थोपेडिक्स करने में मदद करता है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को क्या सूट करेगा और 98% सूट करेगा, और जब पेशेंट को सूट करेगा वो फेल नहीं होगा, वो 30 से 40 साल अच्छी तरह चलेगा। हम लोग चूजिए अपने कपड़े के बारे में, अपने नेकलेसेस के बारे में, इवन राइट नाउ अपने अंडरवेयर्स के बारे में भी, तो इम्प्लांट्स के बारे में क्यों नहीं? तो ये रोबोटिक्स अभी इसलिए आया है कि हम हर पेशेंट को वो दे सके जो वो डिजर्व करता है। तो कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट सर्जन और परफेक्ट होना चाहता है। जो कन्वेंशनल सर्जरी 42% सक्सेसफुल होती है, अभी वो 98% तक लेके जाना चाहता है, ताकि अम्मा जैसे लोग जो बिल्कुल चल नहीं पाते थे, अब नीचे बैठ रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जब तक जिंदा रहे तब तक ये करें। टेक्नोलॉजी का फायदा वॉर करने में भी होता है, किसी की जान बचाने में भी होता है। ये सेम HoloLens कोई देश मिसाइल डालने को यूज कर रहा है और हम उसे मेडिसिन में यूज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, टेक्नोलॉजी का हम फायदा क्यों कर रहे हैं? इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट परफेक्शन। और जब परफेक्ट होगा तो पेशेंट खुश होंगे, एक पेशेंट खुश होगा तो 10 पेशेंट बिलवा में आएंगे। यही बेसिक हमारा उद्देश्य है कि जो भी हो वो परफेक्ट हो, और उसके लिए जो कुछ गैजेट्स, जो कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहिए हम वो ला रहे हैं। एंड नाउ इट इज वेलकम इन कर्नाटक विद द हेल्प ऑफ माय डॉक्टर वेणुगोपाल एंड डॉक्टर राम, एंड ही कैन गाइड यू इन हिज ओन मदर टंग. ಸರ್ ಆಕ್ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ I am very much glad that, sir, on a single word, sir, we have to start our robotics in Gulbarga. I have requested him, sir, Vande Mate barake ready agidru. So today the event was very successful. Thank you very much, sir, for coming. Sir, thank you. This software is the most costliest software. Imagine ये सॉफ्टवेयर में 10 लाख इंटरनेशनल नेशनल पेशेंट्स का डेटा है जो कंपेयर करता है. पहले एक CT स्कैन होता है, CT स्कैन के बाद इससे पहले जो हम रोबोट्स यूज़ करते थे, बड़ी बड़ी मशीन्स OT में होती थी और वो पर्टिकुलर एक ही कंपनी के इम्प्लांट डालते थे. अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में वी हैव अराउंड 3 रोबोट्स वेयर आई वर्क. बट जब AI आ गया, सब लोग अभी जानते हैं कि पूरी दुनिया AI की तरफ जा रही है. सो रोबोटिक्स में अभी AI आ गया है. तो सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया. दैट इज द वन थिंग आई चोज. दिस सॉफ्टवेयर यही सारे लोगों ने फर्स्ट अमेरिकन रोबो बनाया था, वो सारे इंडिया में अभी आ गए हैं. द बेस्ड ऑफ अहमदाबाद. तो दिस सॉफ्टवेयर इज मेड बाय द इंडियन पीपल फॉर द वर्ल्ड. दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनली जा रही है, एंड फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने इंडियन साइंटिस्ट के साथ टाई अप किया है. सो दिस इज सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन यूरोप
in Singapore, in Dubai, in India, after these countries certified this. So this is purely Indian multinational, purely developed by our scientists for our people. So इसका benefit हमें लेना है और ये सॉफ्टवेयर का प्लानिंग हम खुद करते हैं. जब सब कुछ सर्जन के अंडर कंट्रोल में होता है, लिटरली सर्जरी जो मुझे 2-2.5 घंटा लगता था, ईच एंड एवरी सर्जरी 16 से 30 मिनट 18 मिनट में हमारी खत्म हो जाती है. सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है. पेशेंट डे 1 से चलता है क्योंकि वो इम्प्लांट उसको 98% सूट हो चुका होता है, वो लूज नहीं होता. इसके अनगिनत बेनिफिट है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आप रिजल्ट देखते जाओगे, टेक्नोलॉजी को हम अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा. सो वी आर एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, वी आर मैरिंग टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन चालू ही होगा और जहाँ जहाँ अपग्रेड होगा डेफिनेटली बिलवा के साथ भी होगा. एंड वी प्रॉमिस दैट ये सिलसिला रेगुलरली शुरू होगा. वंस वी आर कमिटेड, वी विल बी कमिटेड टू गुलबर्गा. थैंक यू.